میرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہم کو، اچھا کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث بھول رہا ہوں، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میری اتباع کرو، پھر میرے صحابہ کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کو حکم ہے، ہمارے پاس نص ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ کہاں ہے یہ حدیث؟ حدیث سے ابھی پڑھنا، ابھی کیا ہے، تمہارے سے بات کرتے ہو بھول گیا، آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی؟ مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ تو اہل حدیث ہے نا، آپ تو الحمدللہ الحمدللہ۔ نہیں حدیث دیکھیے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، حدیث قرآن، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو سو قرآن حدیث نہیں پڑھ کے، لیکن آپ تو ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دی۔ میں تو الحمدللہ، یہ حدیث تو ایسی معروف حدیث ہے، یہ حدیث تو ایسی معروف حدیث ہے الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بسنتی۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیسے مکر کرتے ہیں، ایک انسان کو اگر سے کوئی لفظ بھول جائے تو اس کو ایسا ستاتے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ اتبعوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی تو میں ابھی پڑھ رہا تھا حدیث، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین۔ لوگوں سب سے پہلے آپ میری سنت کو پکڑو، یہاں حکم دیا گیا علیکم، علیکم میں آتا ہے سب سے پہلے میری، پھر کہا گیا کہ علیکم بسنت خلفائے راشدین۔ پیارے رسول، میرے تو جتنی بھی میں نے باتیں کی الحمدللہ میری باتیں قرآن سے بھی ثابت ہو رہی، حدیث سے، لیکن آپ 10 سال مدرسے میں پڑھ رہے، 14 سال سے 19 سال سے تقلید کر رہے، پھر بھی کچھ نہیں بتا رہے۔ سنیے بات سنیے، آپ نے جو حدیث پڑھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جی، کیا حضور علیہ السلام کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت دونوں علیحدہ چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے رسول کی سنت ہو سکتا ہے، دیکھیے صحابہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ اگر سے آپ اس پہ اعتراض کریں گے تو اللہ کے رسول پہ اعتراض کر رہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین۔ آپ وہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے بات کہی آمنا صدقنا، نبی کی فرمانا۔ دیکھیے آپ مخلدین حضرات، ابو حنیفہ، میری بات سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں الحمدللہ میں واضح مطلب بتا رہا ہوں جیسا اللہ کے رسول نے بتایا۔ حنفی حضرات اپنے امام پہ جرا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن پے رسول کے فرامین پہ اعتراض کر رہے آپ۔ اللہ کے رسول بتائیے نا، خلفائے راشدین کی سنت اور حضور علیہ السلام کی سنت دونوں الگ الگ ہیں۔ دیکھیے سنت کسے کہتے ہیں، آپ پہلے اس کو سمجھیے، سنت کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیے۔ سنت تو طریقے کو کہتے ہیں، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہو سکتا، صحابہ کا بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہ سنت کی تعریف نہیں ہے، آپ سنت کی تعریف کیجیے جو محدثین نے کی ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ الحمدللہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ دیکھیے معروف چیزوں میں جو حدیث کا آتا ہے قولی فعلی تقریری، یہ نبی کی سنت خاص ہے، یہ آپ کے لیے لازم ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ میری بات سنیے علیم صاحب، اتنا بھی آگے مت بڑھ جاؤ کہ اللہ کو جواب دینا پڑے۔ آپ نے کبھی تقلید پہ ایک دلیل نہیں دی، ایک آپ تقلید پہ دلیل نہیں دی۔ سنیے میری بات سنیے، ایک تقلید کی میں نے رد میں آیت پیش کی۔ ارے میں تو واضح، میں تو کدھر بھی نہیں بھاگتا ہوں، کیا حنفی مقلد ہوں کیا؟ اپنے امام کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں، اس کی تقلید کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ کدھر بولے ادھر بھاگنا تو یہ حنفیوں کی قسمت میں۔ الحمدللہ نہیں پہلے تو وہیں بات ہوگی جا میں تو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ کی تقریر کو سنت حدیث کہا جاتا ہے، اور اسی پہ عمل ہوتا ہے، سنت اور حدیث۔ ابھی تو بات کریں گے تقلید پہ، آپ بھاگ رہے اپنے موضوع سے، کتنے بار بھاگیں گے بھائی؟ سوال کی دکان بن جائیں گے۔ بات کی سنیے، ابھی آپ نے سنت کی تعریف کی کہ حضور علیہ السلام کے اقوال افعال اور آپ کی تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ سنت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ تو کیا خلفائے راشدین کے اقوال اعمال اور ان کی تقریرات کو بھی سنت کہا جائے گا؟ بتائیے۔ وہ صحابہ کی سنت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی سنت، پھر حدیث میں سنت الخلفاء راشدین کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیا بولے؟ نہیں آپ مجھے بتائیے، آپ بتانا کیا چاہ رہے، واضح کر کے بتائیے، مغم میں جواب نہیں دے سکتا آپ کو، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ سنت وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے اقوال افعال اور تقریرات کو سنت کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا صحابہ کے اقوال افعال اور تقریرات کو بھی سنت کہا جائے گا؟ اچھا آپ بتائیے، کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ آپ بھی تو کبھی کچھ جواب دے دیجیے، ہر جگہ سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کہیے۔ نہیں ہم کو تو پتا ہے، ہم کو تو سو پتا ہے الحمدللہ، ہم نے بتا دیا
प्यार रसूल का बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई, कुरान की आयत बताई, आप कुछ बताते या सब छुपा लेते? आपने सुन्नत की तारीफ अभी की कि हुजूर अलैहि सलाम के कौल फेल अमल को अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। है नहीं, तो गलत किया कि सही किया? पहले ये बोलो, गलत करा कि सही करा? वही तो मैं नहीं जानना नहीं, चाह मैं रहा हूँ पूछ कि रहा हूँ क्या ना, नहीं नहीं, मैं सहाबा सही के करा कि नहीं, पहले पहले अल्लाह के रसूल पे नहीं क्लियर आपने करते हैं ना। आपने गलत किया। अच्छा, क्या है फिर तारीफ बताइए, आप बताइए। आपने जो हदीस का इतलाक सिर्फ हुजूर ये सुन्नत नहीं का नहीं नहीं, इतलाक पहले जी जी हाँ बताइए, हाँ सुन्नत तो बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना सुनिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सिर्फ की कि जी, सहाबा के अक़वाल अफ़ाल और तक़रीरात को सुन्नत कहा जाएगा या नहीं, ये बताइए बताइए कि इसका मैंने जवाब जो दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या कहते हैं, तो मैंने सही कहा है कि गलत कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। नहीं मैंने नहीं ये नहीं पूछा है कि अभी नहीं भाई, आप ऐसे अबू हनीफा से भाग के सर का हर जगह से भाग भेज रहेंगे क्या? अब्दुल आप अलीम बात अबू भाई, हनीफा पे चली गई। नहीं मैं क्या भाई पूछ देखिए, रहा था, मैं पूछ आपको रहा था सबसे पहले आप तकलीद पे बात करता हूँ बोले, फिर मेरे से तकलीद पूछे, सुनिए फिर मैं आपसे इतना देर बात करने का मतलब क्या है जब आप ऐसा घुमाते रहेंगे? अबू हनीफा के सर का घुमा दे रहे आप, जैसा सुनिए उन्होंने तो पूरी तकलीफ उम्मत के को हवाले घुमा से दिया अपना आप। मैसेज गौर कीजिए आप। मैं तो तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले इतनी, से मैं अपना मैसेज तकलीद गौर पे तो कीजिए। कुरान की आयत पढ़ के बताया, आपको कह रहा है कि बोला अल्लाह ताला कह रहे बोला तत्तबिउ मिन दुनी औलिया कलीलम आप मा सहाबा की तकलीफ तज़क्करून। करते हैं? जी, आप सहाबा की तकलीफ करते हैं? मैं तो बोला ही नहीं, आप ही छुप थोप दे रही है सब। साहबा की तकलीद कौन मैं करा आज पूछ रहा तक? हूँ मैं पूछ रहा हूँ सहाबा की तकलीफ करते हैं आप? कौन बोले साहबा की तकलीद करते बोल के? हमको तो इताअत का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने तो मना किया है किसी की भी नहीं करना। इताअत और तकलीफ में क्या फ़र्क है ये बता दीजिए ये तो आपको। हनफी बताएगा जो करता है वो तकलीद, हम तो आप इताअत इताअत करते करते हैं। हैं ना? आप अल्हम्दुलिल्लाह, इताअत में क्या मतलब? हमको तो हुक्म दिया गया है। आप बताएंगे ना, आप कब तक छुपा लेंगे, तकिया करके बात करेंगे, हर जगह से भाग जाएंगे। नहीं बताना आप चाह रहे आप सहाबा की इतनी? तकलीफ नहीं करते? हाँ, आप अरे इसका है मतलब क्या आप मेरे सहाबा भाई, की तकलीफ तकलीद नहीं है क्या बताएंगे तो मैं बोलता ना, मैं करा तो करा बोलता हूँ, आप बताओ तो सही ना क्या है। मतलब आपको नहीं मालूम है तकलीफ देखिए, क्या चीज़ अपनी है आधा ना? घंटा बात हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब बताया, लेकिन आप जो सो देखिए, एक बात अगर से यहाँ आप घुमा लेके समझ रहे होंगे जीत गए, बहुत बड़ा काम कर लिए कि अपनी तरफ जुबानी करके फैसला हक में ले लिए, तो आपको अफसोस करना चाहिए कि आप 10 साल पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं कर सके इल्म। भाई सुने आप तकलीफ का मफहूम नहीं जानते हैं और गैर मुक़ल्लिदी और मुक़ल्लिदीन को आप बुरा भला कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे? कौन से आपको पहले मुखलिद? जानना चाहिए ना कौन कि से तकलीफ की मुखलिद? हकीकत क्या है, तकलीफ की तारीफ तकलीद, क्या है। तकलीद तो तकलीफ किस झुंझुना है, तरह मैं की तो बता जाती है? दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो उसको सुन के शर्मा गए। अबू तकलीफ की हनीफा तारीफ जैसा कीजिए आप शर्माते आप इस्तिलाह शरअ शर्मा की गए। रोशनी में। जी जी, आप तकलीफ की तारीफ कीजिए इस्तिलाह शरअ की रोशनी में। इसका जवाब अरे दीजिए आप। है नहीं बोल के तो मैं बताया, और तभी तो मैं कुरान से नस पेश करा, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बी, अल्लाह तो तकलीद का रद्द कर दिए। आप तो मान तो बोले, आप तो कुछ भी पेश नहीं करे। आप बताइए तकलीद की शरीयत। सुनिए बात सुनिए अगर आपके तकी उस्मानी तकलीफ साहब जो सुनिए अगर बात सुनिए। बताइए बताइए। मैंने अभी एक आयत पढ़ी वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, तो अबू है हनीफा ना? शुरू हो यहाँ गए, पे वहाँ तो पहले साहबा है बोल रहा हूँ मैं, तो साहबा के सबसे पहले रास्ता देखा जाएगा। देखिए वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, मन जी जो है ना ये आम है, ठीक है। जी जी जी। इसके अंदर सहबा भी शामिल है, औलिया भी शामिल है, बल्कि सुबह अरे तुम क़यामत तो तक अबू पैदा हनीफा होने से वाला शुरू हो गए ना, हर तुम तो, इंसान वो तो शामिल है बात है। जो अल्लाह के मुझ रास्ते की तरफ चलता है। सुनिए बात, है ना? जो अल्लाह की राह पर चलता है, चाहे वो कोई भी हो, सहाबा हो, कोई इमाम हो, कोई मुहद्दिस हो, फ़क़ीह हो, मुहक़्क़िक़ हो, कोई भी हो, उसकी इत्तबा करने का हदीस अबू में हुक्म हनीफा तो दिया खास गया है। नहीं है ना। तो अब नहीं नहीं, अबू मेरे हनीफा सवाल का शामिल जवाब हुए दो। कि नहीं? देखिए ना, अबू अब्दुल अलीम सुनिए साहब, अबू हनीफा तो खास नहीं है ना। आप तो अबू सब कुछ छोड़ हनीफा के खास अबू हनीफा नहीं, को पकड़ लिए कोई ना ना फिर। खास नहीं करता है, हाँ, कोई ना खास नहीं करता है, ठीक है। अस्तगफुरुल्लाह, आप अल्लाह की कसम खाओ, आप अबू हनीफा को खास करके उसकी तकलीद नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। माशाअल्लाह, अबू नहीं हनीफा की करते नहीं हैं। करते, अबू हनीफा की खास तकलीद नहीं करते? अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अभी तो आपने कहा कि इसमें सबसे पहले साहबा आते, तो कुरान की बात छोड़ के आप ये कैसे अकीदा बना लिए कि अबू हनीफा? आपने मेरी बात समझी, आपने समझी मैंने क्या अल्हम्दुलिल्लाह, कहा? मैंने आपकी बात समझी। आपने कहा कि क़यामत तक आने वाले सुनिए मोमिन सुनिए मुसलमान इतनी इतनी आएंगे जल्दी और हुक्म न लगाओ। सहाबा भी आएंगे, और अभी आप कह रहे हैं कि अबू हनीफा को खास कर दिया, आप अबू हनीफा की अरे तकलीद अरे कर दो। सुनिए मेरे भाई, हजरत बोलिए सुन लीजिए आप। मैं बोलिए। कह रहा हूँ कि मैं अबू हनीफा की तकलीद करता हूँ, लेकिन खास अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता हूँ, बल्कि अहनाफ अच्छा, के अंदर जितने भी अइम्मा हैं, इमाम मैं अबू यूसुफ देखिए है, देखिए, इमाम मोहम्मद है, इमाम अबू हनीफा है, जितने भी हैं इन तमाम की तकलीद की जाती है। आप तकलीद का तो मतलब अबू समझ हनीफा का लीजिए। नाम कहीं को बदनाम कर रहे बेचारे का, एक क्लिक करती बोल के सबके बोलो ना।
हम इमाम अबू यूसुफ के मुक़ल्लिद है, हम इमाम यूसुफ के मुक़ल्लिद है, ऐसा बोलो आप। अबू हनीफा का नाम बेचारों कई को बदनाम कर रहे हैं। हनीफा के भी मुक़ल्लिद है, ये बात समझ लें आप। क्या बोले? अच्छा, दो तकलीदें एक जगह जमा हो सकती क्या? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, दो तकलीद एक जगह जमा हो सकती? क्यों नहीं जमा हो सकती है? मिसाल के तौर पे आप तो कहते हैं कि हनफी की करने वाला शाफी की नहीं कर सकता, यानी ये सब झूठ बातें हैं जो हनफी लोगों को घुमा रहे हो। हनफी लोग कुछ है, मेरा जो है इस हवाले से अपना जाती मौक़िफ़ है, ठीक है। अच्छा, आप एक मुक़ल्लिद है और आपको इतनी सलाहियत है कि आप तकलीद के ऊपर इख्तियार करके जो सो बात कर सके हैं, यानी आप यानी ये हक मुक़ल्लिद को भी हासिल है कि वो मेरी बात सुनिए। अरे अब्दुल हलीम भाई, मैं गैर मुक़ल्लिद नहीं, मैं अहले हदीस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अहले हदीस हूँ, गैर मुक़ल्लिद मैं नहीं हूँ। गैर मुक़ल्लिद आप है। क्या मतलब होता है ये बताइए आप? कुरान हदीस पे अमल करने वाला, कुरान हदीस पे अमल करने वाला, इसका ये मतलब होता है। तारीफ तो आप अपने जाहिल इमाम को भी नहीं करे। अच्छा ठहरिए अभी अरे अभी मौजू से भागिए मत, पहले ये बताइए क्या एक जाहिल मुक़ल्लिद को इख्तियार हासिल है कि वो अपने इमाम की तकलीद छोड़ के किसी की भी कर सकता? ये हक उसको किसने दिया? अपने इमाम की तकलीफ कौन छोड़ता है? अभी तो बोले आप अबू हनीफा को छोड़ के इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद को पकड़ तुम बोले ना। बेकार की बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। क्या बता रहे? देखिए, आप अहनाफ के जितने भी फ़िक़्ह की किताबें हैं आप उन्हें देखेंगे तो बहुत सारे मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के मसलक को छोड़ के इमाम मोहम्मद या इमाम अबू यूसुफ के मसलक से फतवा दिया जाता है। तो ये उनकी मज़ीद तकलीद का मसला है। तकलीद शख्सी कहीं भी नहीं हुआ करती है, समझे? अरे मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं मालूम, फिर नाम अबू हनीफा का झंडे पे कहीं को चढ़ा रहे। क्या उनकी बीवी बच्चों की ख्वाहिश थी? अबू हनीफा की खुद की ख्वाहिश थी कि मेरे नाम पे मसलक बना के लोगों को हनफी हनफी बोलो? बोलो ना खिचड़ी अल मुरब्बा है बोल के, खिचड़ी अल मुरब्बा है, किसकी भी कर सकते बोल के खुलेआम ऐलान कर दो। अपने अंदर महफिल में अलग बातें बोलते, बाहर अलग बातें बोलते। आप लोग हनफी मुक़ल्लिद है बोल के पूरी दुनिया को बोलते हम हनाबिला है, हम हनाफ है। अभी बोल रहे इमाम यूसुफ के भी मसलक को लेते, हम बात करें तो ऐसा बोलते। अपने लोगों में बोलते कि हम हनफी है बोल के। अबू हनीफा की तो ख्वाहिश नहीं थी ऐसी। आपको किसी चीज का इल्म ना हो तो उसके बारे में पूरे इल्म है बोल के इतनी देर बात करें, नहीं तो कर सकते क्या? अच्छा, आप लोग अंदर अंदर क्या बोलते? अरे भाई मैं देखिए अब्दुल हलीम भाई, आपकी जो उम्र है ना, उतनी उम्र में छोड़ के और अनफियत का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। आप नए नए देवबंदी एनपी बने होंगे, अभी 19 साल हो रहा, हम 40 साल हो रहा। हम ये सब छोड़ दिए 20 साल पहले। जब है कि नहीं मुक़ल्लिद बहुत कम थे, हम थे जब हमको नहीं घुमा सकते तुम। पहले आप जाहिल थे, फिर बाद में आप मुज्तहिद बन गए। जी 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 जी, जैसा आपके इमाम साहब जाहिल थे ना अबू हनीफा साहब, बाद में इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद कैसा इल्म हासिल करके जो फतावे लिखे और जो इमाम साहब का रद्द करे ना, वैसा हम आज रद्द कर रहे हैं। इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद की मुशाबियत है बोल सकते आप हमारे को? जैसा उन्हों जो तो इमाम जाहिल इमाम का बाद में रद्द करे ना। कितने मसाइल में रद्द करे आप बोलिए मुझे, इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद? आप बताइए, आप मुज्तहिद हैं? अरे तो मैं तो उनकी मुशाबियत हूँ ना अभी इस वक्त। इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद को देखना है तो मेरे को देख लेना। जैसा उन्होंने अबू हनीफा को रद्द करे ना, वैसा मैं रद्द कर रहा हूँ। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका इल्म इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के बराबर है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोला। अबू हनीफा से ऊपर है, अबू हनीफा से ऊपर है। क्यों? तो जहाँ जहाँ उनकी गलतियाँ वहाँ रद्द करके आपको बता रहे हम, तो आप जो सो नहीं मान रहे आप। चलिए, अल्लाह आपको हिदायत दे। अच्छा सुनिए ना, चलिए मैं कुछ मसाइल पूछता हूँ, ठीक है? इसमें आप जो है अपने इज्तिहाद से आपको अपनी राय कायम करनी है। बताइए। ठीक है, मैं ये मसला पूछ रहा हूँ कि कोई हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, तो कोई दूसरा रिश्तेदार अपना हार्ट उसे दे सकता है कि नहीं? शरीयत की रोशनी में इसको हल कीजिए आप, अपने इज्तिहाद की रोशनी में, और कुरान और हदीस से दलील भी दीजिए इस पर। हाँ, क्या बोल के? कोई हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, उसका हार्ट फेल हो चुका है। अब कोई दूसरा रिश्तेदार उसको अपना हार्ट देना चाहता है। अच्छा, तो ऐसा करना शरीयत की रोशनी में जायज है या नहीं? तो जवाब दिया तो क्या करते आप? मैं देखना चाहता हूँ क्या तो मेरी तकलीद करते क्या? मेरी तकलीद करते क्या? तकलीद नहीं, अभी बहुत सारे मसाइल हैं। अरे छोड़ो भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आप ये बोलो कि आप मान लिए कि नहीं अबू हनीफा कुछ भी नहीं करे बोल के? अबू हनीफा की तकलीद छोड़ दिए कि नहीं? आंसर द क्वेश्चन प्लीज। अरे होगा अभी आगे सवाल जवाब पे, अभी कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग।
پہلے تو یہ جواب چاہیے دے تھا کہ آپ بات اپنے کی امام صاحب سے وہ سوب کر سکتے ہم، مگر تمہارے کو بتا کے فائدہ کیا ہے؟ قرآن کو رد کر دیے تم تو ہمارے احتیاط کو کیا رکھیں گے تم؟ ہم آپ کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کو بولے تو لائٹ لے لیا آپ، اللہ تعالیٰ بولے ہوں گے ہم تو ابو حنیفہ کی کرتے بول رہے آپ استغفر اللہ، اللہ سے اتنی آیتوں کی مخالفت کر کے بھی ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ اچھا ایک آیت پڑھے تو وہ ڈائریکٹ ابو حنیفہ سے شروع کر دی اس میں، ابو حنیفہ سے پہلے بھی تو انہوں مجتہد بننے سے تو پہلے بھی تو لوگ آئے تھے آپ کے بقول انہوں مجتہد تھے، ان کے بھی استاد تھے پھر اس آیت میں، آپ بولتے کہ پھر میں قیامت تک آنے والوں کا بھی اس میں ذکر ہے بولتے وہ آیت سے ہر وہ مسلمان شامل ہے بولتے، لیکن پھر گاڑی ابو حنیفہ سے چالو کرتے۔ آپ بولیے کہ ہاں اس میں صحابہ بھی آتے، پھر تابعین بھی آتے، خیر القرون کے لوگ بھی آتے، پھر آخرت تک آنے والے آتے، تو پھر ان کی کیوں نہیں کرے آپ؟ ان کا نام بنا کے مسلک کیوں نہیں بنائے؟ آپ نے دو دعوے میں جھوٹ ہے، آپ قرآن پہ بھی جھوٹ بول کے بھاگ گئے، آپ کی حدیث کو بھی بات نہیں مان مکمل ہو رہے۔ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، ارے میں ہو گئی، یہ چلو تمہارے پاس کچھ لیکچر بھی نہیں ہے بھائی، تم خالی اب سوال کی دکان بن کے خالی یہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے بس۔ سوال کا جواب دے دو آپ۔